सो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 फिफ्थ क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 में फोर्थ क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 फिफ्थ क्वेश्चन। So fifth question में given है a cubical box has each edge 10 centimeter and another middle box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. So आपको यहाँ पे given है two parts. So first part में आपको solve करना है which box has the greater lateral surface area and by how much. And the second part is which box has the smaller total surface area and by how much. So first of all जो question में given है उसके according हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं. So first box is a cubical box. Okay. So cubical box के dimensions क्या है? Cubical box की each edge, okay, मतलब जो उसकी edge की length है वो कितनी है? 10 centimeter. Which means cubical box cube के लिए edge किस लिए denote करते हैं? By a. So a is equal to 10 centimeter. And the second box is cuboidal box. So cuboidal box. So cuboidal box के dimensions क्या given है आपको? Length is 12.5 centimeter, breadth is 10 centimeter, and the height is 8 centimeter. Okay. So first of all आपको first part में find out करना है कि cuboidal box and cubical box दोनों box में से किसका lateral surface area ज़्यादा है, which means cuboidal and cubical ये जो दो box आपको given है इन दोनों box में से किसका lateral surface area ज़्यादा है. Cubical box, so cubical box which means cube. Okay, so cube के लिए हम कैसे find out करते हैं lateral surface area? The formula of lateral surface area of cube is 4a square. Okay, a is for edge and second box is cuboidal box. So cuboidal box के लिए lateral surface area क्या होगा? इसके लिए formula क्या होता है? 2l plus b h. Okay, एक और मैंने आपको बताया था कि और किसी different तरीके से लिख सकते हैं and the formula becomes 2lh plus 2bh. Okay, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस वे में भी लिख सकते हैं. So ये दो फॉर्मूलेज हैं, ये दोनों फॉर्मूलेज क्या है? लेटरल सरफेस एरिया. सो इन दोनों फॉर्मूलेज में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, देन हम कंपेयर करेंगे कि क्यूबॉइडल एंड क्यूबिकल बॉक्स में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स. ओके, सो क्यूबिकल बॉक्स is equal to 4a square. यहाँ पे a की वैल्यू क्या गिवन है? 10 सेंटीमीटर. सो 4 into 100 because 10 square is 100 which is equal to 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, क्योंकि हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? LSA which means lateral surface area. So area फाइंड आउट कर रहे हैं, that's why यहाँ पे यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is the lateral surface area of cubical box and then we find the lateral surface area of cuboidal box. So LSA of cuboidal box. So the formula is 2l plus b is 12.5 plus 10 multiply with h which means 8. The answer is 360 centimeter square because हम lateral surface area find out करें. So area हमेशा कैसे होती है? यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर. So अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि lateral surface area of cuboidal box and lateral surface area of cubical box में से cubical box का lateral surface area ज़्यादा है as compared to cuboidal box lateral surface area. ओके, सो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन करना था? Which box has the greater lateral surface area? सो यहाँ पे कौन सा बॉक्स आपको दिख रहा है? क्यूबिकल बॉक्स. सो द आंसर इज हेंस cubical box has a greater LSA और lateral surface area. एंड आपको फर्स्ट पार्ट में ये भी बताना है by how much. सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका एरिया मतलब क्यूबिकल बॉक्स का जो एरिया है इज 400 एंड क्यूबॉइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया इज 360. ओके, सो अब इसे माइनस करेंगे सो इज इक्वल टू 40. So 40 centimeter square cubical box lateral surface area is 40 centimeter square more than the cuboidal box. Okay, by how much आपसे पूछा था इसलिए हमने यहाँ पे cubical box के lateral surface area में से माइनस किया है cuboidal box के lateral surface area which means LSA को. So the answer is 40 centimeter square. Okay, क्योंकि इतने एरिया ज़्यादा है cubical box का rather than cuboidal box. अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट क्योंकि this is the final answer of first part. ओके, कि आपको फर्स्ट पार्ट में यही फाइंड आउट करना था कि किसका लेटरल सरफेस एरिया व्हिच मींस LSA ज़्यादा है एंड बाय हाउ मच. सो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया एंड क्यूबॉइडल बॉक्स. ओके, अब सेकंड पार्ट में आपको क्या सॉल्व करना है? व्हिच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया. अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्यूबॉइडल एंड क्यूबिकल बॉक्स में से किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया व्हिच मींस TSA स्मॉलर है एंड बाय हाउ मच.
ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला. सो क्यूबिकल बॉक्स TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज 6A². ओके, एंड क्यूबॉइडल बॉक्स का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया. क्यूबॉइडल बॉक्स मींस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया. सो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB BH प्लस H है. ओके, अब इन दोनों फॉर्मूलेज में हम वैल्यू पुट करेंगे, देन हम फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों बॉक्सेस में से किसका टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे TSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स. सो TSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स is 6 into 10 square, which is equal to 600 centimeter square. Okay, 600 centimeter square is the total surface area of cubical box, and then we find the total surface area of cuboidal box. So TSA of cuboidal box is equal to 2LB, which means 12.5 into 10. So 12.5 into 10 plus BH 10 into 8. Then H into L, which means 8 into 12.5. The final answer is 610 centimeters square. So 610 centimeters square is the TSA of cuboidal box. अब आपको सेकेंड पार्ट में बताना था कि किसका टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर है. So TSA of cubical box is 600. TSA of cuboidal box is 610 centimeter, which means smaller TSA is cubical box. Okay. So TSA of cubical box is smaller than the TSA of cuboidal box. So the final answer is hence TSA of cubical box is smaller than the TSA of cuboidal box by, अब आपको यहाँ पे ये भी बताना है by how much. So 600 and 610. So 610 minus 600 is 10 centimeter square. Okay. This is the final answer of second part. Hence TSA of cubical box is smaller than the TSA of cuboidal box by 10 centimeter square. Okay. So students, this is the final answer of fifth question. अब आप ले लीजिए इसका screenshot, then हम solve करेंगे sixth question. So students, I hope आपको fifth question अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम solve करते हैं sixth question. So sixth question में given है a small indoor greenhouse is made entirely of glass plates held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. So यहाँ पे आपको given है two parts. So first part में आपको solve करना है what is the area of the glass, and the second part is how much of tape is needed for all the 12 edges. आपको जो क्वेश्चन में डेटा given है उसके अकॉर्डिंग ग्रीन हाउस की डायमेंशंस क्या है. So the length is 30 centimeter, breadth is 25 centimeter, and the height is 25 centimeter. Okay, so आपको यहाँ पे ग्रीन हाउस के डायमेंशंस गिवन है इस क्वेश्चन में, एंड आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास. तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रीन हाउस जो है वो एक क्यूबॉइडल शेप में है. ओके, सो क्यूबॉइडल शेप में विच मींस यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में यही सॉल्व करना है एरिया ऑफ द ग्लास. तो एरिया ऑफ द ग्लास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, with the help of area of cuboid. So first part में आपको solve करना है area of the glass. Okay, so area of the glass we find with the help of total surface area of cuboid. Okay, so the formula is 2LB BH plus H. Okay, अब इस formula में हम values put करेंगे. So the formula becomes L into B is 30 into 25 plus 25 into 25 plus 30 into 25. Okay, so the final answer is 2 into 2125. Okay, so the final answer is 4250 centimeter square is the area of the glass. So the answer of first part is hence the area of the glass is 4250 centimeter square. So this is the final answer of first part. Okay, so अब हम solve करते हैं second part. So second part में आपको find out करना है how much of tape is needed for all the 12 edges. यहाँ पे आपको find out करना है how much tape were used for 12 edges. Okay, so 12 edges is 12. 12 edges के लिए आपको find out करना है how much tape were used. So 4 into 25 plus 30 plus 25. Okay, आपको ये edges की जो dimensions given है ये given है green house की 30, 25 and 25. 30 is length,
breadth is 25, height is 25. ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया 25 प्लस 30 प्लस 25 एंड मल्टीप्लाई कर दिया 4 से. सो द फाइनल आंसर इज 4 into 80 क्योंकि 25 प्लस 25 is 50, 50 plus 30 is 80. The final answer is 320 centimeter. Okay, so the answer is hence 320 centimeter tape were required for all 12 ages. ओके, सो 12 एजेस के लिए आपको कितने सेंटीमीटर टेप यूज होगा 320 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन. अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे 7th क्वेश्चन. तो इस आई होप आपको 6th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं 7th क्वेश्चन. सो 7th क्वेश्चन जो गिवन है, शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस for packing their sweets. Two sizes of boxes were required. The bigger of dimensions. Okay. आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2 साइज की बॉक्स है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायमेंशंस गिवन है ऑफ बिगर बॉक्स. सो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बिगर बॉक्स के डायमेंशंस. सो बिगर बॉक्स के डायमेंशंस आपको गिवन है. L is equal to 25 सेंटीमीटर, breadth is equal to 20 सेंटीमीटर and the height is 5 सेंटीमीटर. ओके, एंड देन आपको डायमेंशंस गिवन है ऑफ स्मॉलर बॉक्स. ओके, सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलर बॉक्स के डायमेंशंस. सो स्मॉलर बॉक्स, सो द लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, breadth is 12 सेंटीमीटर and the height is 5 सेंटीमीटर. ओके, for all the overlaps, 5% of the total surface area. मतलब इन दोनों बॉक्सेस के डिफरेंट जो टोटल सरफेस एरिया है, जैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स and total surface area of smaller box is 5%. Okay, जब हम इन बॉक्स को ओवरलैप करते हैं, total surface area is required extra, which means 5% extra TSA required when we overlap the boxes. Okay, then if the cost of the cardboard is 4 rupees for 1000 centimeter square, and आपको यहाँ पे प्राइस भी गिवन है 4 rupees is price for 1000 centimeter square. Okay, 4 rupees is the charge for 1000 centimeter square. Okay, then find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind, which means bigger box and smaller box के 250 boxes आपको रेडी करने हैं. आपको इसकी प्राइस फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे प्राइस ऑफ बिगर बॉक्स. सो बिगर बॉक्स के लिए आपको यहाँ पे यूज करना होगा TSA ऑफ बिगर बॉक्स, which means total surface area. सो अब हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर box. Okay, so the total surface area of bigger box is 2LB plus BH plus HL. Okay, यही फॉर्मूला है क्योंकि हमें यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज करना है TSA ऑफ क्यूबॉइड. सो अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं. सो L into B which means 25 into 20 plus B into H 20 into 5 plus H into L 5 into 25. Okay, the final answer is 1450 centimeter square is the TSA of bigger box. अब आपको क्वेश्चन में एक और चीज गिवन थी कि 5% एक्स्ट्रा TSA मतलब 5% एक्स्ट्रा टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होता है जब हम बॉक्स को ओवरलैप करते हैं. तो आपको इसका 5% भी फाइंड आउट करना होगा. सो 1450 का हम फाइंड आउट करेंगे 5%. सो 1450 into 5 upon 100 which is equal to 0 से 0 cancel. Okay, 1 upon 2, 2 7s are 14, 2s are 4.5. Okay, so 72.5 centimeter square extra TSA required when we overlap the bigger boxes. अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो TSA था उसका 5% फाइंड आउट कर गया है. ओके, अब आपको इसका एडिशन भी करना होगा क्योंकि आपको इतने साइज के बॉक्सेस बनाने हैं. सो आप यहाँ पे क्या करेंगे 1450 प्लस 72.5 इज इक्वल टू 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमने क्या फाइंड आउट किया टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स. और ये हमने किसका फाइंड आउट किया ऑफ वन बॉक्स. अब आपको यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 250. ओके, सो अब इसे हम क्या करेंगे 1522.5 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 250. सो 1522.5 मल्टीप्लाई विद 250 बिकॉज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड. ओके, मतलब दोनों टाइप के बिगर बॉक्स भी स्मॉलर बॉक्स भी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या किया कि जो नॉर्मल डायमेंशंस आपको गिवन थे उसके अकॉर्डिंग हमने नॉर्मल TSA फाइंड आउट किया.
देन आपको क्वेश्चन में गिवन था 5% एक्स्ट्रा टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होता है जब हम इन बॉक्सेस को ओवरलैप करते हैं। सो हमने उसका 5% भी फाइंड आउट किया, देन हमने उन दोनों का एडिशन किया जिससे आपको टोटल सरफेस एरिया पता चले बिगर बॉक्स का। सो यहाँ पे हमने एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकाला विच इज 1522.5। देन आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्सेस। सो यहाँ पे हमने क्या किया 1522.5 मल्टीप्लाई विद 250 विच इज 38,062 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मतलब 250 बॉक्सेस का एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा 38,062 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने किसका फाइंड आउट किया ऑफ बिगर बॉक्स। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको फाइंड आउट करना होगा सिमिलरली फॉर स्मॉलर बॉक्सेस। सो स्मॉलर बॉक्सेस के लिए भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल TSA ऑफ स्मॉलर बॉक्स। ओके, इससे भी हम TSA ऑफ क्यूबॉइडल फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो 2 into LB 15 into 12 प्लस BH 12 into 5 प्लस 5 into 50। ओके, सो सिंप्लीफाई दैट 2 into 350। ओके, इनका सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 350 विच इज इक्वल टू 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ये क्या फाइंड आउट किया है TSA ऑफ नॉर्मल डायमेंशंस जो आपको गिवन थे उसके, ठीक है, क्यूबॉइडल बॉक्स बट स्मॉलर बॉक्स। यहाँ पे आपने जैसे बिगर बॉक्स के लिए फाइंड आउट किया था फर्स्ट ऑफ ऑल TSA और जो एरिया आया था उसका हमने क्या फाइंड आउट किया था 5%। सो सिमिलरली आपको 630 का भी 5% फाइंड आउट करना होगा। सो 630 into 5 upon 100 which is equal to 001 upon 2। The answer is 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया, पहले हमने TSA निकाल लिया टोटल सरफेस एरिया, देन उसका 5% निकाल लिया। अब जैसे हमने बिगर बॉक्सेस के लिए 5% और TSA का एडिशन किया था वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना होगा। सो एडिशन ऑफ TSA एंड 5% इज 630 प्लस 31.5 इज इक्वल टू 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने ये क्या फाइंड आउट किया है TSA और टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स। ओके, वन बॉक्स के लिए आपने फाइंड आउट किया, आपने उसका 5% ऐड कर दिया, उसका TSA भी ऐड कर दिया। सो टोटल सरफेस एरिया आ गया 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इस क्वेश्चन को हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे हमने टोटल सरफेस एरिया तो निकाल लिया ऑफ वन बॉक्स। अब आपको यहाँ पे किसका फाइंड आउट करना है 250 बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे 661.5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे विद 250। Okay, so 661.5 multiplied with 250 is equal to 1,65,375 centimeter square. Okay, so 1,65,375 centimeter square total surface area of 250 boxes. So यहाँ पे इससे प्रीवियस हमने बिगर बॉक्स के लिए टोटल एरिया फाइंड आउट किया था, सिमिलरली हमने यहाँ पे स्मॉलर बॉक्स के लिए भी फाइंड आउट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। ओके, सो यहाँ पे हमने बिगर बॉक्स का एरिया फाइंड आउट कर लिया, स्मॉलर बॉक्स का एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो अब इन दोनों बॉक्सेस के एरिया को हम ऐड करेंगे। ओके, सो एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। सो फर्स्ट प्लस सेकंड यहाँ पे से लिख लीजिए। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 8,062 प्लस 1,65,375 which is equal to 5,46,000 centimeter square. Okay, so the total area is 5,46,000 centimeter square. तो हमने इसे कैसे फाइंड आउट किया with the help of addition of first and second equation. आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था 250 बॉक्सेस की कॉस्ट। ओके, दोनों टाइप की, मतलब बिगर बॉक्स भी स्मॉलर बॉक्स भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बिगर बॉक्स का एरिया फाइंड आउट किया, देन स्मॉलर बॉक्स का, फिर हमने क्या किया यहाँ पे एडिशन कर दिया एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस, सो व्हिच इज इक्वल टू 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में कॉस्ट क्या गिवन थी 4 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो 4 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कॉस्ट निकालनी है फॉर 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। Simplify that. So 5,46,000 to 4 upon 1000. Okay, so 0, 0, 0 cancels, which is equal to 2,184 rupees. Okay, so the final answer is hence 2,184 rupees were required for 250 boxes
ऑफ ईच काइंड। ओके, दोनों टाइप के बॉक्सेस, बिगर बॉक्स स्मॉलर बॉक्स, दोनों टाइप के बॉक्सेस के लिए 250 बॉक्सेस जो आपको फॉर्म करने हैं उसके लिए आपको कितना प्राइस लगेगा, 2184 रुपीज। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन। आई होप आपको 7th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1। सो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो। थैंक यू स्टूडेंट्स।